standard poem named Fire and Ice. This poem was composed by Robert Frost. It is a very beautiful poem. It is very short poem and it is very thoughtful poem. Through this poem, the poet describes the idea of world destruction, the catastrophe of the world. मीन्स कि दुनिया का अंत कैसे करके दुनिया का अंत होगा, इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये हमको बताया है. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, the people of the world are divided into two groups and they have their different theory for the destructions of the world. A group of people consider that the fire will become the very cause of world destruction. According to this group, the people say in upcoming time, the inner part of the earth will become more and more hot. Day by day, the heat of the core of the earth will increase. And one day, there will be a big blast. Big fire flames will erupt and everything will burn down. And this way, the world will get its end. The other group of people support the notion of ice or snow. This group of people think that in future time, the temperature of the earth will come down, will fall down. Day by day, the temperature will decrease. And due to this decreasing in the temperature, all the landscapes and all the parts of the earth will be covered by the snow. And there will be a complete cold. And in such bad circumstances, nothing will survive. And this way, the earth will be finished. Here, the poet also brings a symbolic meaning of this poem. We have two elements, fire and ice. Fire has its own symbolic meaning and ice has its own symbolic meaning. According to poem, here fire represents the desire of the man. Man has a lot of kinds of desires. He has greed, he has temptations, he has selfish nature, he has lust. And these desires are working as a fire in the world. Human race has become blind due to these desires. Day by day, the ambitions of the people, the desires of the people, the selfish nature of the people is increasing. And one day, these desires will bring a bad or sad result to the world. Second, ice. Ice is a symbol of hate. Poet is saying that day by day, the hate is spreading among the human races. People are hating each other
and this hate is working as a poison. And one day, due to this hate, the world will get its end. Because when we begin to hate each other, then we will fight, and at last we will get our end. So let's read and find out what the poet tried to describe through this poem. Some say the world will end in fire. कभी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत जो है आग लगने से होगा। मीन्स की दुनिया में ज्वालामुखी फटेंगी और इस प्रकार से दुनिया का अंत हो जाएगा। सम से इन आइस, और कभी कह रहे हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धीरे धीरे इस विश्व के तापमान में कमी आएगी और यहां बहुत ज्यादा बर्फ जम जाएगी और दुनिया का अंत हो जाएगा। फिर कहा, फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कह रहे हैं आई टेस्टेड ऑफ डिजायर मीन्स मुझे क्या सोचना पसंद है, लेकिन कभी कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है, मुझे यह सोचना पसंद है कि मुझे उन लोगों के साथ जाना चाहिए जो इस बात को बताते हैं कि दुनिया का अंत आग लगने से होगा। बिकॉज दैट इज द क्रिश्चियन थ्योरी एंड पोएट इज ए क्रिश्चियन मैन। क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं कि दुनिया का अंत जो है आग लगने से होगा, और कवि जो है एक क्रिश्चियन है तो इसलिए वो अपने धर्म के साथ जुड़े हुए। और इसका सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि कवि कह रहे हैं कि लोगों के मन की इच्छाएं बढ़ रही है, या स्वार्थ बढ़ रहा है, वासना बढ़ रही है, लालच बढ़ रहा है, और ये सब इच्छाएं जो है आग का काम कर रही है। और एक दिन ये सब इच्छाएं जो है दुनिया को भस्म कर देगी, समाप्त कर देगी। जब इच्छाएं जो अनंत हो जाएगी, दुनिया का अंत निश्चित है। सेकंड फेज, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स बर्बाद होना, ट्वाइस मीन्स दो बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। कवि कह रहे हैं कि यदि धरती को दो बार अगर विनाश किया जाए, मीन्स कि एक बार तो आग से विनाश हो गया, दोबारा उसको बनाए, और दोबारा अगर उसका विनाश होना या विनाश करना पड़ेगा, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। इनफ ऑफ हेट मीन्स नॉट लाइक। तो कभी कह रहे हैं मैं जानता हूं, भले मुझे ये कहना पसंद नहीं है, मुझे ये बताना अच्छा नहीं लग रहा है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा कारण, एंड सफाइस मीन्स पर्याप्त। तो कभी कह रहे हैं कि मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी मैं ये कहता हूं कि एक दिन जो है बर्फ से भी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। यानी पहली बात कभी ने की कि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो ये कह रहे हैं कि दुनिया का अंत जो है आग के कारण। फिर दोबारा कभी कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी का एक बार पुनः अगर विनाश करना है तो इसके लिए बर्फ भी पर्याप्त है। कभी ने यहां पे कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये कहते हुए, क्योंकि कभी जो है क्रिश्चियन थ्योरी को मानते और दुनिया का अंत आग से न होकर बर्फ से होगा, ये थ्योरी अन्य धर्मों की, तो इसलिए कभी कह रहे कि मुझे अच्छा नहीं लगता। इस लाइन का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो ये है कि कवि कह रहे हैं कि धीरे धीरे दुनिया में इतनी घृणा, इतनी नफरत बढ़ेगी कि लोग घृणा से एक दूसरे का जो है अंत कर देंगे, और दिस वे द वर्ल्ड विल गेट इट्स एंड। सो दिस इज वेरी शॉर्ट, ब्यूटीफुल एंड थॉटफुल piece of the Robert Frost. Thank you.